جی، تو ایز فار ایز 20th سینچری از کنسرنڈ، ہم بہت ساری ایجوکیشنل سیٹ اپس میں ہم سائیکلوجیکل میئرمنٹ کو اسٹارٹ ہوتا دیکھتے ہیں اس 20th سینچری میں، جس میں ایک کام جو بیسک نیچر کا کیا گیا جو کہ بہت امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے ان 1905 جو ڈین سائمن کا اسکیل انٹروڈیوس کروایا گیا مینٹل ایبلٹی کو میئر کرنے کے لیے، اور وہ بیسیکلی فرینچ لینگویج میں ویری فرسٹ ٹائم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا۔ آج ہم اس کو انگلش لینگویج میں بھی دیکھتے ہیں، اور کٹیل نے جو فرسٹ ٹائم مینٹل ٹیسٹ کی ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی، اس کی بیسس پہ الفرڈ بینے نے جو سب سے پہلا ٹیسٹ ڈیولپ کیا مینٹل ایبلٹی کا ان 1905، تو اسکول پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے مینٹل ایبلٹی بیسیکلی وہ اس وقت اسکول پرفارمنس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے تھے۔ اسٹینفرڈ بینے کا انٹیلیجنس اسکیل جو ہے وہ اسٹینفرڈ بینے انٹیلیجنس اسکیل کے نام سے اتنا امپورٹنٹ اس طور سے جو ڈیولپ کیا گیا، آج بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ وہ ہمیں ویلڈ ریزلٹس دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بینے اور سائمن تھارن ڈائک اور اس کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ٹیچرز کالج آف کولمبیا یونیورسٹی میں اسی فیلڈ میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے لیے ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیے جا رہے تھے۔ ہم 20th سینچری کی جتنی بھی پروگرس ہے، جو بھی ایجوکیشن ہے، اس کو ہم ڈفرینٹ پیریڈس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، یہ ڈفرینٹ فیزز میں، آلموسٹ 15 ایئرس ان ایج، اور آخری جو ہماری 5th اسٹیج ہے 1960 ٹو 1980، اور اس کے بعد 1980 اینڈ آنورڈس ہم جو ہے وہ پروگرس دیکھتے ہیں کہ ہم نے 20th سینچری میں کیا کیا جو ہے وہ پروگرس کی ہے اس فیلڈ میں۔ تو ویری فرسٹ پیریڈ جو کہ 20th سینچری کا 1900 ٹو 1915، جو پہلے 15 ایئرس ہیں، اس میں ہمیں جو پروگرس نظر آتی ہے ود ریفرنس ٹو دی ورلڈ وار ون، دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ۔ جیسے ہم نے جو نیچر آف دی سائیکلوجیکل ٹیسٹنگ پڑھتے ہوئے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب یہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے تو سائیکلوجیکل ٹیسٹنگ کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، ہم نے اس میں کافی اس کو ڈسکس کیا تھا۔ جو آفیشلس تھے، جو سولجرز تھے، ان کی جو پرابلمس سامنے آنا شروع ہوئی، اور ایک جنگ جو ہے، ایک عالمی جنگ ورلڈ وار، وہ پرولونگ کر گئی، وہ 4 سال تک 1914 ٹو 1918 جو ہے وہ چلتی رہی، اور اس میں جو ایشوز ان سولجرز کے سامنے آئے، تو یہ محسوس کیا گیا کہ ان کو رائٹ مین فار دی رائٹ جاب دیکھنے کے لیے کوئی اسسمنٹ کا میتھڈ ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے جن کو ریکروٹ کیا ہے مرنے اور مارنے کے لیے، وہ بیسیکلی ان کے اندر شاید یہ ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں تھا، اور ان کے اندر کوئی مینٹل اور کوئی ایسے مینٹل ایبلٹی کی پرابلمس اس سے ریلیٹڈ تھیں جن کو ٹائملی آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کیا جا سکا۔ تو اس جو ایک ارجنٹ نیڈ محسوس کی گئی، اور ایک ورلڈ لیول پہ اس کو جو ہے وہ محسوس کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمن تھا وہ اس نے پہلا ورژن انٹیلیجنس ٹیسٹ کا انٹروڈیوس کروایا اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں۔ ایس ٹی فورٹیس نے انٹیلیجنس کے لیے جو ہے وہ میز ٹیسٹ انٹروڈیوس کروایا، نان وربل ٹیسٹ ہیئرنگ اور لینگویج ہینڈی کیپس کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بینے جو ہے اس نے انٹیلیجنس ٹیسٹ ڈیولپ کیا، ماڈرن انٹیلیجنس ٹیسٹ جس کو کہا جا سکتا ہے۔ چارلس پیئرمین نے جو ہے وہ میئرمنٹ آف ہیومن ایبلٹیز کی تھیری جو ہے وہ تھیریز پبلش کی ہیں۔ ہم بیسیکلی جیسے ہم نے نیچر آف سائیکلوجیکل ٹیسٹنگ کی بات کر رہے تھے، جب وہ چیپٹر ڈسکس ہو رہا تھا، تو اس میں بھی ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ 20th سینچری میں جو پہلا ہمارا کام ورلڈ وار ون سے اسٹارٹ ہوا تھا، وہ بیسیکلی انٹیلیجنس ٹیسٹنگ، انٹیلیجنس اسیسمنٹ، مینٹل ایبلٹیز اور انٹلیکچوئل کیپیسٹی، کوگنیٹیو ایبلٹیز پہ بیسیکلی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، جو لیٹر آن پرسنالٹی، ایپٹیٹیوڈ اور ڈفرینٹ آسپیکٹس آف دی ہیومن اور ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ تھا، وہ ہم نے ایوالو کیا۔
तो हम कॉग्निटिव एबिलिटी की डिफरेंट जो आस्पेक्ट्स है उसको इस इरा में उस पर काम होता जो है वो देख रहे हैं। लोगों की रैंकिंग उनकी मेंटल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होता देखते हैं हम। मेंटल एबिलिटी की डिफरेंट डायमेंशंस को असेस करने की डिफरेंट मोडालिटीज़ जो अडॉप्ट की गई और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए उनको हम इस दौर में जो है वो देखते हैं। किस एबिलिटी में जो लोगों की परफॉर्मेंस के हवाले से टेस्ट डेवलप किए गए, उनकी मेंटल एबिलिटी और कॉग्निटिव एबिलिटी के हवाले से डेवलप किए गए, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो जनरल इंटेलिजेंस का हमें जो है वो मिलता है कि जी एक जनरल इंटेलिजेंस, ऐसे अभी हम रिफाइंड कॉन्सेप्ट में जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को अलग करते हैं। तो ये बेसिकली ये 20th सेंचुरी का फर्स्ट पीरियड था जिसमें ये हमें कॉन्सेप्ट मिला। तो कोई एक जनरल इंटेलिजेंस भी होती है, और चूँकि मेज टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट डेवलप हुए थे और उससे इस तरह की इंडिकेशंस मिल रही थी कि कोई एक ऐसा आपके अंदर टैलेंट जो वदियत कर दिया गया होता है, जो आप बाई बर्थ लेके आते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद फिर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हुए। इसके बाद के जो 15 ईयर्स हैं 1950 टू 1930, इसको हम बूम पीरियड के तौर पे कंसीडर करते हैं। इसमें एक बहुत ज़्यादा जो एडवांसमेंट हमें नज़र आती है, क्विक एडवांसमेंट नज़र आती है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म होने को है और उसमें जो उसकी हमें रिक्वायरमेंट और ज़रूरत महसूस हो रही है टेस्टिंग की, और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है कि असेसमेंट के कोई मेथड्स होने चाहिए। तो उस पर एक रैपिड काम जो है वो शुरू हुआ और डिफरेंट टेस्ट, पर्टिकुलरली जो आर्मी ऑफिशियल्स के लिए, सोल्जर्स की असेसमेंट के लिए टेस्ट हैं, वो हमें फिर इसमें डेवलप होते नज़र आए। ओटिस ने सबसे पहले जो आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट लिटरेट पर्सनस के लिए था, पढ़े लिखे लोगों के लिए, और इलिटरेट के लिए आर्मी बीटा। उस वक्त जैसे अभी हम एक स्पाई को भी उसकी भी रिक्रूटमेंट के लिए क्राइटेरिया मैट्रिकुलेशन, कम से कम मैट्रिक एजुकेशन है, तो उस वक्त जाहिर है अभी इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो उसमें कम पढ़े लिखे या इलिटरेट भी एज ए सोल्जर जा सकते थे, उनकी रिक्रूटमेंट भी होती थी। तो एक नॉन वर्बल टेस्ट भी वो जो है वो कम पढ़े लिखे या अगर कोई उनको हैंडीकैप है तो उनके लिए वो यूज़ हो सके, तो आर्मी बीटा टेस्ट भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। आर्मी अल्फ़ा में बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, आइटम्स थी, और बीटा जो है वो आम ट्रेनीज़ के लिए वो इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप्ड को जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनकी क्लासीफाई करने और उनको रिजेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। वर्ड वर्क पर्सनल डाटा शीट जो है वो भी एक टेस्ट उसी दौर में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, और वो भी सोल्जर्स के लिए भी और आम इंडिविजुअल्स के लिए भी उनकी इमोशनल फिटनेस को चेक करने के लिए यूज़ किया गया, जो बेसिकली मिलिट्री सेटअप के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन हम उसको पर्सनल सिलेक्शन में और जगह पे भी यूज़ करने शुरू हो गए थे, क्योंकि वो जनरली इमोशनल फिटनेस जो है वो असेस करता था, इमोशनल प्रॉब्लम्स को जो है वो आइडेंटिफाई करता था। तो ये इस वॉर के बाद जो है वो हमें बहुत सारी रैपिड चेंजेस और रैपिड एडवांसमेंट इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नज़र आती है। उसमें जो है वो स्टूडेंट्स की वोकेशनल इंटरेस्ट के हवाले से एक एडवांसमेंट, उनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मैयर करने से जो काम शुरू हुआ, और वो फिर इमोशनल लेवल पे असेसमेंट्स होना स्टार्ट हुई। तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये भी इमर्ज हुआ कि वोकेशनल इंटरेस्ट के हवाले से भी कोई असेसमेंट मोडेलिटीज़ होनी चाहिए। कैरियर सिलेक्शन के हवाले से जो है वो असेसमेंट प्रोसीजर्स होनी चाहिए। तो उसके हवाले से स्ट्रॉन्ग का काम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हमें इस एरा में नज़र आता है। हमें जो है वो रिफाइंड किस्म के पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो इस एरा में उनकी स्टार्ट जो है वो नज़र आता है। हम एजुकेशनल लेवल पे जो डिसीजंस ले रहे थे, जो हम असेसमेंट परफॉर्मेंस की बेस पे कर रहे थे या उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेस पे कर रहे थे, उस सब के लिए स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स डिवाइस कर लिए गए दौर में। और थर्स्टन ने जो एटीट्यूड्स का टेस्ट, वैल्यूज़ का टेस्ट वेरी फर्स्ट टाइम
जो है वो दिया इसी इरा के ऑलमोस्ट एंड पे 1929 में। तो उसके बाद उस पर जो है वो एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ पे डिफरेंट टेस्ट जो है वो हमें डेवलप होते उसके बाद नज़र आते हैं। उसके बाद जो 1930 टू 1945 के जो 15 साल हैं, ये ऑलमोस्ट हमें एक क्रिटिसिज्म का पीरियड नज़र आता है। ये हमने लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जैसे 1920s में एक टाइम जो है वो हमने फेस किया है, एक क्रिटिसिज्म जो क्यू एंड क्राई इंटेलिजेंस टेस्ट जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, तो उस पर पेरेंट्स का और स्कूल्स का जो एक प्रोटेस्ट सामने आया। उसके साथ साथ ये एक दौर ऐसा था, ओवरऑल दुनिया में एक रिसेशन था, स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश कर गई हुई थी सारी दुनिया में। एक जंग के बाद का एक पीरियड और अगली जंग की तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो गई हुई थी। और इसी दौर में आपको जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी नज़र आती है 1939 टू 1944 के एक जो है वो वर्ल्ड वॉर से दुनिया जो है वो फारिग हुई थी और अगली की फिर जो है वो अपना एक तरह से बदला लेने के लिए वो दोबारा उसकी तैयारी में थी। और इसी दौर में आपको इन 15 ईयर्स के अंदर अंदर दूसरी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो भी नज़र आती है। तो ये एक रिसेशन एक पूरी दुनिया में जो ओवरऑल इकोनॉमिक्स के हवाले से था, तो हमें टेस्टिंग में भी थोड़े से वो एक रिसेशन का पीरियड नज़र आता है। लाइक वाइज उसमें सिर्फ ये ऐसा रिसेशन और ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं था कि जिसकी वजह से हमारा ये काम रुक गया हो। साथ साथ कंसोलिडेशन का प्रोसेस था, साथ साथ हम काम कर रहे थे, अपनी मैयत में रिफाइनमेंट ला रहे थे। जो क्रिटिसिज्म थे, जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थे, लोगों के जो एप्रीहेंशंस थी, स्पेशली जैसे हमने पेरेंट्स के हवाले से बात की थी कि उन्होंने जो बच्चों को क्लासीफाई किया जा रहा था, उस क्लासिफिकेशन को सेग्रीगेशन कहना शुरू कर दिया था कि ये हमारे बच्चों को लेबलाइज कर रहे हैं, ये हमारे बच्चे जो अभी तक नॉर्मल हमें लग रहे थे, ठीक लग रहे थे, ये उनको मेंटली रिटार्टेड कहना शुरू हो गए हैं। स्कूल्स वालों के अपने इश्यूज थे, जो पॉलिटिकल हमने जो है वो एक डिस्कस किया था कि किस तरह से लोगों के पॉलिटिकल और सोशल जो उनके मकासद थे उसके लिए वो कोर्ट्स में चले गए कि इस काम को रोका जाए। तो वो सारी जो उसमें टेक्निकल इश्यूज टेस्टिंग में थे, या डिसमिनेशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट किस तरह से होनी चाहिए, उस हवाले से बेसिक जो काम है वो रिफाइनमेंट्स लाई गई। और साथ साथ न्यू टेस्ट भी इसी दौर में फिर हमें डेवलप होते जो है वो नज़र आए। कुदर स्केल्स जो हैं वो वोकेशनल इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए डेवलप किया गया इसी फर्स्ट पीरियड ऑफ क्रिटिसिज्म के दौरान। मिनेसोटा मल्टीपल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री MMPI, जो स्टिल एक वैलिड टेस्ट के तौर पे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। उसके डिफरेंट वर्जन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन जो है वो हो चुकी हुई हैं, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांसलेशन। स्टैनफर्ड बीने का जो कंपटीटर था उसमें वेस्लर वैल्यू इंटेलिजेंस स्केल आया। स्टैनफर्ड बीने स्केल के बाद जो उसका कंपटीटर के तौर पे कंसीडर किया जाता था और एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव स्केल था। थर्स्टन के उसमें जो है वो स्केल्स उनको शामिल किया गया। मैथमेटिकल थेरी के रिलेटेड जो है वो हमें इसमें कॉन्सेप्ट मिलता है। फैक्टर एनालिसिस जिसको आज हम यूज़ करते हैं, कोई भी नया स्केल डेवलप करते हुए, नया टेस्ट डेवलप करते हुए, जब तक हम फैक्टर एनालिसिस नहीं कर लेते, हम जो है वो उसको एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट के तौर पे कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी तक की तरफ जाते ही नहीं हैं जब तक उसका फैक्टर एनालिसिस ना कर लें। तो ये प्रोसीजर, ये स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, इसको उस दौर में रिफाइन किया गया और इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया कि हम कोई भी टेस्ट जब डेवलप करते हैं तो उसको फैक्टर एनालिसिस के प्रोसेस से ज़रूर गुजारें। ह्यूमन बिहेवियर को मेजर करने के लिए ये जो पीरियड था ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया गया है हमारे वो 1920s के उस सारे इश्यूज, सारी क्रिटिसिज्म की वजह से। उसके बाद एक बैटरी पीरियड जो है वो 1945 टू 1960 हमें नज़र आता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जब हम बैटरी की बात करते हैं, तो जब भी आप दो या दो से ज़्यादा टेस्ट को इकट्ठा एक साथ यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ टेस्ट बैटरी।
वो टेस्ट कौन से होते हैं, दो या दो से ज़्यादा टेस्ट जो आप एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप सिलेक्ट करते हैं। सपोज आपने अगर कोई कैरियर असेसमेंट करनी है, तो कैरियर असेसमेंट में जिन जिन आस्पेक्ट्स को मैयर करना ज़रूरी है, वो टेस्ट आप उस बैटरी में शामिल करेंगे। अगर आप कोई सर्वेंट्स की सिलेक्शन कर रहे हैं, आप ऑफिसर्स की सिलेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको कुछ टेस्ट चाहिए, तो उनकी कौन कौन सी असेसमेंट को आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देखनी है, उनकी पर्सनैलिटी असेस करनी है, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी देखनी है। जो जो आस्पेक्ट्स उस जॉब के लिए ज़रूरी हैं, या आप उनके स्पेसिफिक कोई एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, तो जो जो टेस्ट उस टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो टेस्ट आप खुद जो है वो डिसाइड करते हैं कि इस बैटरी में कौन से होने चाहिए। और कुछ स्टैंडर्ड बैटरीज डेवलप हुई भी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स एक मरीज़ को जस्ट अटेंड करते ही 3-4 टेस्ट जो है वो विदाउट नोइंग एनी हिस्ट्री वो सजेस्ट कर सकते हैं, जिसको रूटीन टेस्ट कहा जाता है। जी एक्सरे चेस्ट प्लाज्मी होना चाहिए, ब्लड कंप्लीट टेस्ट, यूरिन कंप्लीट टेस्ट उसका जो है वो होना चाहिए, और उसका जो है वो वाइटल साइंस आपने देखने हैं। तो वो टेस्ट ऐसे हैं जो कि हर पेशेंट के उसमें कोई ना कोई क्लू एक डॉक्टर को मिल जाता है। इसी तरह से कुछ स्टैंडर्ड बैटरीज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी होती हैं, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, और उस दौर में अभी चूँकि नया नया कॉन्सेप्ट था बैटरीज का, और कुछ बैटरीज बाकायदा जो है वो डिवाइस की गई। अब हम जब भी कोई बैटरी बनाते हैं, तो वो फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, फॉर द स्पेसिफिक सिचुएशन हम उसको जो है वो डेवलप करते हैं। तो इस दौर में जो बैटरीज डेवलप की गई, उनका जो ज़्यादा फोकस था वो एबिलिटी और पर्सनैलिटी असेसमेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि इससे पहले का पीरियड जो है वो हमें फर्स्ट पीरियड ऑफ क्रिटिसिज्म में हमें पर्सनैलिटी टेस्टिंग की इब्तिदा हो गई हुई थी, हम उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो हमने बैटरी में पर्सनैलिटी टेस्ट को और एबिलिटी टेस्ट को इकट्ठा करना शुरू किया। एजुकेशनल सेटअप्स में जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को यूज़ किया जाने लगा, और एक बिज़नेस के तौर पे ये जो है वो इस फील्ड ने इमर्ज किया। स्कूल में, बिज़नेस में, इंडस्ट्री में, सिविल सर्विसेज में, ऑल पॉसिबल एरियाज जितने उस वक्त तक जो है वो एक्सप्लोर हो चुके हुए थे, वहाँ पे कमर्शियल बेसिस पे जो है वो इन टेस्ट को यूज़ किया जाने लगा, इन टेस्ट को यूज़ किया जाने लगा। लाइकवाइज जो हमारे क्लिनिकल सेटअप्स थे, उनमें पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ को असेस करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी एडजस्टमेंट को मैयर करने के लिए इन बैटरीज को यूज़ किया जाने लगा, इन टेस्ट को यूज़ किया जाने लगा। डिफरेंट पोजीशंस में लोगों को रिक्रूट करने के लिए, उनकी सिलेक्शन के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए इन टेस्ट को हमने यूज़ करना शुरू किया है। हमने जो मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे, उनमें जो है वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, उनको बेहतर रखने के लिए टेस्ट को यूज़ किया। कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से इश्यूज जो है वो ट्रेनिंग में आते हैं या आ सकते हैं, किस वजह से जो मिलिट्री पर्सनल हैं, सोल्जर्स हैं, उनकी मोटिवेशन कम होती है, किस वजह से उनकी डिस्ट्रैक्शन होती है, किस वजह से वो जो है वो ट्रेनिंग जो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा नहीं कर सकते। इस सारी असेसमेंट के लिए इन टेस्ट को यूज़ किया गया, और इफ़ेक्टिवली यूज़ किया गया। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हमारे पास उस वक्त के लिहाज से मौजूद थे। एंड बाय अबाउट 1965 हम बहुत सारी ह्यूमन बिहेवियर की डायमेंशंस को जो है वो टैप करने के काबिल हो गए हुए थे। उसमें एबिलिटी और पर्सनैलिटी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, और उसके बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल थे उस दौर में, वो उसमें शामिल थी। ऑल्दो कि हमने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड्स की बात जो है भी करना शुरू कर दी थी। देन एक सेकंड पीरियड ऑफ क्रिटिसिज्म है, जिसमें बेसिकली एथिकल स्टैंडर्ड्स के हवाले से ज़्यादा बात होनी शुरू हुई, और उन एथिक्स को इसी दौर में फिर कंसोलिडेट भी किया गया, और इसी में फिर जो एथिकल रिव्यूज़ डिफरेंट कमेटीज़ पे काम जो है वो भी हो रहा था। और एथिक्स जो जैसे बाकी फील्ड्स में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, साइकोलॉजी में भी करवाए गए थे, टेस्टिंग में भी पर्टिकुलरली उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। जो
ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो आना शुरू हुआ, वो इसकी टेस्टिंग की जो हम इम्प्लीकेशन थी उसके हवाले से ये था कि आप लोगों की प्राइवेसी को असल में जो है वो इन्वेड कर रहे हैं। आप अगर कोई क्लाइंट को इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता तो आप कोई ऐसा टेस्ट उस पर एडमिनिस्टर कर दें जिसमें आप इनडायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन ले लें, तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ अनएथिकल। आप अगर इंटरव्यू में कोई चीज़ उससे पूछ रहे हैं तो वो तो जवाब देने से अगर इनकार कर दे तो वो तो हो सकता है कि दोबारा आपका जो थेरापिस्ट है या असेसमेंट जो भी कर रहा है वो दोबारा ना पूछे। लेकिन टेस्ट में तो अगर क्लाइंट को पता ही ना चले कि ये क्या असेस करना चाह रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे, और वो जवाब दे दे, और एक्चुअली अगर उसको पता होता है कि क्या पूछा जा रहा है तो वो जवाब ना देना चाहता, तो इसका मतलब कि हम उसकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं। उस पर ज़ाहिर है बाद में फिर बाकायदा जो एथिकल स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए तो उसमें ये चीज़ें जो है वो शामिल भी की गई, और हमने बताया कि हम प्राइवेसी को इन्वेड नहीं करते हैं। हम जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट नहीं देना चाहता, हम ज़बरदस्ती, हम बाई फोर्स वो इंफॉर्मेशन उससे नहीं लेते। इसी तरह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो जेंडर के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी आए कि कुछ टेस्ट जो हैं वो उसमें ऐसी बाइस्ड आइटम्स मौजूद थी, वो सम टाइम्स सम प्लेसेस पे वो वाक़तन मौजूद थी और सम प्लेसेस पे जस्ट उनको परसीव किया जा रहा था। तो इन एनी केस वो उन आइटम्स के हवाले से, उन चीज़ों के हवाले से कंसिडरेशन हुई और उनको जो है वो चेंज भी किया गया कि अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप या कोई जेंडर उससे अफेक्ट होती है तो उसको जो है वो मिनिमाइज़ किया जाए, उन आइटम्स को इरेडिकेट करके उसको री-स्टैंडर्डाइज़ किया जाए उन टेस्ट को। जैसे आज भी हम कहते हैं कि आप लैंग्वेज भी ऐसी यूज़ ना करें जो कि ऑफेंसिव लैंग्वेज हो, जो कि किसी ख़ास जेंडर के लिए तकलीफ दे हो, किसी ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल, एथनिक ग्रुप के लिए वो चीज़ गलत कंसिडर की जाती हो, तो कोई ऐसी लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करते। हम अगर फायर मैन की बात करते थे तो अब हम कहते हैं कि फायर मैन भी तो एक ख़ास जेंडर की बात आपने जो है वो शो कर दी। ऐसे लगता है कि ये सिर्फ मेल्स के लिए टेस्ट है, तो आप फायर फाइटर कहें, आप मेल मैन की, मेल कैरियर की बात करें, आप जो है वो उसमें कोई जेंडर का लफ्ज़ भी इस तरह से ना आ रहा हो कि किसी के लिए वो ऑफेंसिव हो। तो ये इश्यूज जो हैं इस दौर में आने शुरू हुए, वो हमारे जो एथिकल स्टैंडर्ड्स के हवाले से जो डिबेट है वो आई, और उसमें ज़्यादा जो है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट के हवाले से ये सारी चीज़ें, और जो एजुकेशनल सेटअप में काम हो रहा था उसमें ये इश्यूज रिपोर्ट किए गए, और इसको फिर जो है वो मिनिमाइज़ करने के लिए और इनको कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स की गई, एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो डेवलप किए गए। और जितने भी टेस्ट में अगर कोई बाइस्ड मटेरियल था या सिर्फ वो बाइस्ड नज़र आ रहा था तो उसको कोशिश की गई कि उसको ख़त्म किया जाए, उनको चेंज किया जाए, और टेस्टिंग प्रैक्टिस में जो ऐसी चीज़ें थी जिनके हवाले से ये कंसीडर किया जा रहा था कि ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, तो उस प्रैक्टिस को भी जो है वो चेंज किया गया, और कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से बात शुरू हुई, और चीज़ें कौन से रिजल्ट्स किसको और किस तरह से डिसमिनेट करने हैं, किस तरह से वो इंफॉर्मेशन देनी है, उस हवाले से जो है वो बाकायदा जो है वो एथिकल कमेटीज़ की सजेशंस दी, और वो इन राइटिंग हमारे पास एथिकल बाउंड्रीज जो है वो बनना शुरू हुई हैं। उस पर कोर्ट्स की लेजिस्लेशन और बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन के डिसीजंस थे वो भी आए, लेकिन उसके साथ साथ ये उनके जो है वो प्रोफेशनल बॉडीज़ ने ये एथिक्स पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया हुआ था, तो वो एक हमारी टेस्टिंग की मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर किया जा सका, वो रुकी नहीं। लेकिन उस दौर में जब ये जिन जगहों पे, जिन इंस्टीट्यूशंस के लिए कोर्स के डिसीजंस आए, उसमें फॉर द टाइम बीइंग डिसीजन मेकिंग को ज़रूर रोक दिया गया। जाहिर है जिस तरह से अभी भी आज के दौर में भी होता है कि कोई एक टेस्ट का रिज़ल्ट आता है, कोई एक फाइंडिंग्स आती हैं, कोई एक ख़ास ग्रुप ये महसूस करता है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो कोर्ट से स्टे ले लेते हैं और एज़ इट इज़ सारा प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है, वो आगे प्रोसेस नहीं होता। तो इसी तरह से उस वक्त भी जब कोर्स के डिसीजंस आए और कुछ जगहों पे असेसमेंट के रिजल्ट्स और टेस्टिंग की बेसिस पे जो डिसीजंस लिए जाने थे, कोई एडमिशन्स होने थे या कोई सिलेक्शन का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होना था,
तो वो फॉर द टाइम बीइंग रुक गया और डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकी। उससे वक्ती तौर पे वो प्रॉब्लम ज़रूर हुई, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो जो है वो उसको, उस सारे प्रोसेस को, हमारी इस डेवलपमेंट को वो डिसीजंस अफेक्ट नहीं किए। ये बिल्कुल ऐसी ही एफर्ट हम इसको कंसीडर करते हैं कि इसको जो है वो ठीक करने के लिए, इस प्रोसेस को ठीक करने के लिए ऐसे किया गया कि अगर एक जो है वो पानी में कोई एक बच्चा है, उसमें वो पानी गंदा हो गया हुआ है, तो वो साफ़ करने के लिए आप वो पानी भी फेंक दें और बच्चे को भी फेंक दें, तो वो या जैसे आपके बॉडी पे अगर कोई आपके कोई किसी लिम्ब पे, आपके बाजू पे, आपकी टांग पे कोई एब्सेस बन गया है, तो बजाय इसके कि आप एब्सेस का इलाज करें, आप कहें कि जी इसकी टांग ही काट दें या इसका बाजू ही काट दें, तो इससे इस एब्सेस से भी जान छूट जाएगी। तो ये एफर्ट्स उस वक्त जो स्पोर्ट्स की तरफ से या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो इस तरह के जो प्रोटेस्ट हुए, उसका जो है वो हमें इम्पैक्ट यही नज़र आता है कि वो बजाय इसके कि उन लूप होल्स को, उन वीकनेसेस को ठीक करने की बात कर, उन्होंने असल में वो सारा प्रोसेस ही रोकने की बात कर दी। लेकिन उसमें वो प्रोसेस फॉर द टाइम बीइंग अफेक्ट ज़रूर हुआ, लेकिन टेस्टिंग में हमारी डेवलपमेंट्स हैं वो जारी रहीं। उसके बाद अगेन इस फील्ड में जो है वो फ्लरिश किया। करंट जो हमारा सिनेरियो है 1980 ऑनवर्ड्स, हम जो है अपनी इस फील्ड को देखते हैं तो कोई ऐसी साइकोलॉजी की फील्ड नहीं है। हमारी जितनी ब्रांचेस, जितने डिसिप्लिन्स हैं, जितने भी हमारे एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी हैं, और उसके बाद फिर बाकी सोशल सेटअप्स में जितने भी प्रोफेशनल एरियाज़ हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को अब यूज़ ना किया जाता हो। इसकी एफिकेसी अब डिटरमेंट हो चुकी है। हम ह्यूमन बिहेवियर को, इंटेलिजेंस को, पर्सनैलिटी को इफ़ेक्टिवली अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंट जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं उनके थ्रू हम जो है वो इसको मेजर करते हैं, और डिसीजन मेकिंग में इसको जो है वो इसके ख़ास मुकाम इसको मिल गया हुआ है। इस सोसाइटी में जितने भी हमारी रेलिवेंट फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की भी, और रिलेटेड जितने एरियाज़ हैं, उसमें इसकी एफिकेसी को जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया है। हमारी इस सारी प्रोसेस का, इस सारी डेवलपमेंट का अब सारे का सारा जो फोकस है वो साइकोलॉजिस्ट पे है, टेस्ट यूज़र्स पे है कि अब वो मज़ीद इसको किस तरह से जो है वो मज़ीद बेहतर, साइंटिफिक और बेनिफिशियल फॉर दी सोसाइटी बना सकते हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट की, टेस्ट यूज़र्स की अपनी ट्रेनिंग, अपनी उनकी कॉम्पिटेंस भी अपनी जगह जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो जितने वेल ट्रेंड होंगे, जितने कॉम्पिटेंट होंगे, वो उस उन सारे टेस्ट को, टेस्टिंग के प्रोसीजर्स को बेहतर अंदाज से जो है वो यूज़ कर सकेंगे। और साथ ही साथ टेस्ट में भी रिफाइनमेंट और एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट सोसाइटी की चेंज हो रही हैं, नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, न्यू टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। और उन टेस्ट में अगर प्रीवियस टेस्ट में कोई लूप होल्स हैं तो उनको रीस्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है, ताकि ये प्रोसेस इसी तरह से इफ़ेक्टिवली जो है वो कंटिन्यू रहे। हम इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से भी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी न किसी हवाले से एकेडमिक प्रोग्रेस और सूटेबिलिटी के कोई ना कोई टेस्ट जो है वो दे रहे होते हैं। 1.8 मिलियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन ईच ईयर किसी ना किसी टेस्ट से जो है वो गो थ्रू होते हैं, वो उस टेस्ट के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। हम डिफरेंट जो डिसीजंस हैं, इवन मिलिट्री से रिलेटेड, इवन जुडिशल प्रोसेस से रिलेटेड, आपको पता है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं क्रिमिनल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए, मिलिटेंट मिलिट्री बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, सिविल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। हर एरिया में जो इन टेस्ट और इस टेस्टिंग के प्रोसेस की जो अहमियत है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। एम्प्लॉयज़ को जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन, प्रमोशन, उनकी अगर उनको टर्मिनेशन का कोई डिसीजन लेना है, इवन देन जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग असेसमेंट है उसका रोल जो है वो इफ़ेक्टिवली अंडरस्टैंड किया जाता है, टेस्टिंग के प्रोसेस को यूज़ किया जाता है।
डॉक्टर डेविड ने 1978 में एक फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया था जो बिहेवियरल एवेल्यूशन के लिए और साइकोलॉजिस्ट के लिए, बिहेवियरल साइंटिस्ट के लिए। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने जो है वो सॉफ्टवेयर की दुनिया में हमें ये एक तरीका बताया कि हम ऑनलाइन टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर के थ्रू भी टेस्टिंग असेसमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं। और आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने खुद से भी और बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज़ ने अपने तौर पे कुछ टेस्ट को जो है वो ऑनलाइन किया हुआ है, कुछ टेस्ट की जो है वो थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू सॉफ्टवेयर, उनकी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन के सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर लिए गए हैं। और उसमें अब जो है वो हैंड स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। हम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बहुत सारे आइटम्स का जो एनालिसिस और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का ऑन द स्पॉट एनालिसिस करके उसके रिजल्ट्स बताने के काबिल हो गए हैं। हम जो है वो अपनी इस टेस्टिंग और टेस्ट की एफिकेसी ऑलमोस्ट हर जगह पे प्रूव कर चुके हुए हैं, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो काउंसलर्स हैं, वो टीचर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, एजुकेशनल सेटअप है, वो प्रोफेशनल सेटअप है, वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। हर जगह पे इन टेस्ट को यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो आईक्यू टेस्ट हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, वो एटीट्यूड टेस्ट हैं, हम उनको यूज़ कर रहे हैं। और ये काम इवन जैसे अभी हमने बात की कि हम इसको जितने अच्छे से, जितने एक्सपर्टीज़ के साथ, जितनी बेहतर कॉम्पिटेंसी के साथ और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के साथ जारी रखेंगे तो इसमें कमिंग ईयर्स में मज़ीद एडवांसमेंट और साइंटिफिक इंक्लूजन की उम्मीद करते हैं। ये लास्ट पे आपको इसकी समरी अगेन, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी ये इनको समराइज़ कर दिया गया है। इसको भी आप एक दफ़ा देख सकते हैं, पूरा चैप्टर इसको जस्ट इन ग्लांस देखने के लिए ये आपको हेल्प आउट करेगा। ओके जी, थैंक यू। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों के?